Hello all, welcome to my channel, and I believe yesterday's analysis was useful to you guys. And yesterday opening levels are this. You can also check it in yesterday's in the video description below. So I already given these are the open levels for today. So see how the good market was reacted, and it got broken and given some points here, and also it got broken here and it given some points here also. And I'll usually not trade in between these levels. So for tomorrow, let's jump into the tomorrow's opening areas and the support and resistance values. So so yesterday, I mean, sorry, not for tomorrow, it is for Monday, that is on 26th April. So the opening, the higher level of opening will be 31,878.85 paisa. If Bank Nifty is able to open or closes above this level, so the market might go upside till 32,145, and if that breaks and closes above this level, then ultimate target is 32,333. And if Bank Nifty is able is opening below 31,536.65 paisa or closing below this level, there will be immediate resistance areas here. So I suggest you to take until wait until 31,395.95 paisa breaks and closes, and then we can find till 31,201. So there is no much momentum, but there is 180 points momentum here in this gap. So if this two trend lines get breaks and closes below, then the ultimate target will be 30,471, the previous low. So, and again, as I told you guys, today it given a nice trades in Bank Nifty. So let's now jump into the Nifty. And yesterday Nifty, I told you guys this will be my lowest level, and this will be the highest level. And if you see in here, the open level went up and it shooted up, and it never closed below in the morning, so it got rejected in the same area, and it shooted up, and again it shooted up here and fallen down, and again it given the trade here and it fallen down. So at least a minimum points of momentum given after the lines get broken, and also here some points here. So for tomorrow, for Nifty, sorry, for Monday, sorry for that. तो सोमवार के दिन निफ्टी अगर ओपन होता है 14,362.55 पैसे के ऊपर, तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा निफ्टी टू द लेवल ऑफ 14,504, एंड बीच में मेरे को कुछ रेजिस्टेंस का नहीं दिख रहा है. आज इधर तो रेजिस्टेंस मिला था, मगर इधर रेजिस्टेंस कहीं को मिला बोले तो पुराना वाला है इधर, तो इसके वास्ते इधर रेजिस्टेंस मिला था हमारे को. तो if Bank Nifty is able to open below or closes below 14,266.55 paisa, I am seeing the fall till 14,205. अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये टूट के 20 मिनट सस्टेन कर लेता है मार्केट, that means if it is able to close below and sustains below for at least 20 minutes below the level of 14,191.25 paisa, then only I'm seeing the fall. But until then, there is no fall in Nifty. It might struggle to break this once. Again, it is, I mean, if for example, if Monday it is taking the support here, and if it is bouncing back, again we can see the resistance here. So just be careful about that. So you can mark this level of 14,328.00 paisa
this will be the resistance area. So it's like a zone kind of thing. So and Nifty from 324.65 paisa, sorry 60 paisa to 14,332.00 पैसा. सो ये जोन हो सकता है आपके लिए सोमवार के दिन के लिए. तो अगर ये जोन कभी भी टूटने के लिए कोशिश करेगा, मगर थोड़ा मुश्किल रहेगा उनको, आई मीन निफ्टी को फिलहाल के लिए उसको तोड़ना बोले तो. सो नाउ लेट्स जंप इनटू दी Reliance. So Reliance, what I'm seeing here is for Monday, if Reliance is able to open above 1912.75, it will go up. And as I told you yesterday also, it faced the same area resistance. So for tomorrow or for Monday also, that is the same area of resistance area, that is 1917.65 paisa. If that is able to crack open, then only it will go till 1925.55. That means any 5 minutes candle has to close above that. So if that closes above, also if 1925.65 breaks and closes above, then there will be a resistance area around somewhere around 1936, somewhere around that area. And for the downside, if Reliance is able to open below 1897.55, so there will be an immediate resistance area somewhere around 1890. So this zone is there still. So ये जोन, अगर ये जोन ब्रेक करके 20 मिनट सस्टेन कर लेता है रिलायंस नीचे में, तो जोन का बॉटम इज एट 1889.90 पैसा. तो इसके नीचे सस्टेन कर लेता है, तो अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, 1879 will be the first resistance area, sorry support area. एंड वो भी टूटेगा 5 मिनट में या 15 मिनट में, टूट के बंद हो जाएगा कैंडल. तो अगेन इट माइट फॉल टिल 1867.85 पैसा. सो 66 or 67, 1866 or 67, that might fall until that area. So this is for Reliance. And I believe Reliance was only traveling in between our opening levels today. So there is no much momentum in Reliance. So let's now go to the HDFC. अगर HDFC मंडे के दिन ओपन होता है 1424.45 पैसा के ऊपर, तो रेजिस्टेंस रहेगा आपको किधर 1429.70 पैसा के ऊपर. अगर वो भी टूट के बंद हो जाएगा तो आपको जाएगा ये HDFC 1442.75 पैसा. एंड अगर मंडे के दिन खुलता है नीचे 1407.05 पैसा के नीचे खुलेगा या उसको ब्रेक करके बंद होगा, तो टारगेट विल बी 1377.70 पैसा फॉर HDFC बैंक फॉर मंडे. एंड HDFC आज का लेवल्स क्या दिया था मैंने, या ये दोनों तरफ का दिया था अच्छा खासा. मैंने बेयर मिनिमम पॉइंट्स दिया था, इधर भी बेयर मिनिमम पॉइंट्स दिया. इफ़ एनीबडी वांट, आई मीन कोई भी करना चाहता है तो लेवल टू लेवल के बीच में भी कर सकते हो आप. मगर लेवल टू लेवल के बीच में मैं कहीं को नहीं बोलता देखिए इधर ऐसा हो सकता है. ये जो है ना, नीचे आया, बंद हुआ, आपने पुट लिया, आपका कोशिश रहेगा इधर तक जाएगा बोल के, मगर इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर बाद में आ गया. तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोल तो, whenever I'll not suggest the people to trade in between this lines, opening lines, either high level or low level. Where is the opening levels? So I'll not suggest the people to trade in between the levels. So जब भी आपको ब्रेकआउट होगा तभी ले लीजिए. अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो आप बेशक कर सकते हो, जब लाइन के अंदर बंद हो जाएगा तो आप ले सकते हो, आपका टारगेट ये रहेगा. तो अल्टीमेटली विल गेट इट. बट अगेन
if something goes wrong with this trade and if I mean इधर तो आ गया नीचे, मगर ये नीचे नहीं आया ऊपर गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसके वास्ते मैं बोलता हूँ, आई मीन इफ़ यू आर अ रिस्की प्लेयर यू कैन, आई मीन आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो। तो नेक्स्ट TCS में जाएंगे हम। तो TCS का सोमवार के लिए लेवल्स रहेगा, तो इसमें वो उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला मेरे को शायद। ओके, TCS में आपको अगर मार्केट ओपन होता है या क्लोज होता है 3123.50 पैसा के ऊपर, तो ये ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ये करेगा टिल 38.60 पैसा के तक। एंड अगर TCS नीचे खुलता है या नीचे बंद होता है 30,094.50 पैसा के नीचे, तो अल्टीमेटली ये ट्राई करेगा फिर से जोन को टेस्ट करने के लिए। वो जोन है हमारा 30,075 के पास, 75.45 के पास है जोन। तो ये जोन अभी टूटना मुश्किल दिख रहा है मेरे को। अगर कुछ ऐसा मेरे को लग गया टूटेगा बोल के सोमवार के दिन, तो मैं टेलीग्राम में मैं पोस्ट डाल दूँगा। हाँ, कोई भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। तो अगर अभी जाएंगे हम SBIN के पास, आई एम सॉरी, आई नेवर टोल्ड यू व्हाट हैपेंड विथ TCS लेवल्स टुडे। आई मीन कल का ओपनिंग का लेवल्स दिया ना, वो क्या हुआ नहीं बोला ना। देखिए उधर ही मारा, उसके बीच में ही मारा, उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। हाँ, मगर इधर जब येलो लाइन आ गया तो थोड़ा बहुत तो पैसा मिल गया, मगर उतना नहीं मिला जितना हम सोचते। तो चलो जाएंगे हम अभी SBN के पास। SBN मंडे के दिन अगर ऊपर ओपन होता है 337.25 पैसा के ऊपर, तो दिस माई टच द लेवल ऑफ 339। तो वो भी ब्रेक होके बंद होता है तो ऑब्वियसली जाएगा 344.40 पैसा। एंड अगेन फॉर डाउन साइड, इफ 333.25 पैसा के नीचे खुलता है या उसको ब्रेक करके बंद होता है 5 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल, तो ये जाने का कोशिश करेगा टिल 330 तक। अगर ये भी टूटेगा तो दिस विल बी द लेवल फॉर SBN 327.40 पैसा। So and what is happened with SBN today, and it opened below and it went up and it shooted up, came down, shooted up. So इधर कोई भी नुकसान उठाया होगा, उधर इधर तो प्रॉफिट मिल गया होगा आपको। तो इसमें भी थोड़ा उतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला। चलो हम अभी जाएंगे इंडसइंड बैंक के पास, हमारा लास्ट स्टॉक है। हाँ, अगर किसी को इंडिविजुअल आई मीन जो मैं स्टॉक्स बोलता हूँ या इंडेक्सेस बोलता हूँ, उसके अलग कुछ और चाहिए, लाइक हिंदुस्तान हो गया, नहीं तो एक्सिस बैंक हो गया, नहीं तो और कोई कौन सा भी स्टॉक होने दीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप बेशक मेरे को व्हाट्सएप भेज सकते हो, वो नंबर भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो व्हाट्सएप भेज सकते हो, या नहीं तो कॉल कर सकते हो, या नहीं तो कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट्स में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखना थोड़ा मुश्किल है, तो आई प्रेफर टू कॉल और व्हाट्सएप मी। सो चलिए अभी इंडसइंड बैंक का देख लेंगे। तो इंडसइंड बैंक अगर ओपन होता है 854.75 पैसा के ऊपर, आई एम सॉरी फॉर दैट, एवरी टाइम आई एम गेटिंग दैट सेम थिंग। सो ओके, अगर इंडसइंड बैंक खुलेगा ऊपर 854.75 पैसा के ऊपर या बंद होता है उसके ऊपर, तो जा सकता है 860 भी ब्रेक हो गया तो जाएगा 864.85 पैसा। तो अगर इंडसइंड बैंक खुलता है नीचे
843.35 पैसे का नीचे, तो ये जाएगा नीचे। अगर उसके नीचे खुला या उसके नीचे बंद हुआ तो ये जाएगा 833.20 पैसा, वो भी टूटा। तो 816.25 पैसा विल बी द टारगेट एरिया एंड देयर इज सम ट्रेंड लाइन है इधर, तो वो ट्रेंड लाइन को आप ज़रूर रख लीजिए एक बार दिमाग में। 819 820 के पास रहेगा ये ट्रेंड लाइन। इफ़ यू वांट दैट ट्रेंड लाइन आपको मैच करना है अप्रैल 19 का और 22 अप्रैल का, ये कैंडल्स को आप मार्क करना है। हाँ, ऊपर में भी है, मगर ये खुलेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो नीचे आने का ही है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस फॉर मंडे एंड दिस विल बी टुडे। आई मीन आज का ओपनिंग लेवल्स दिया था मैंने, तो ओपनिंग लेवल्स देने के बाद बंद हुआ ऊपर, अब स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, फिर बाद में दिया, उसके बाद आपको डबल रिटर्न दे दिया। तो आई मीन एक स्टॉक में, दो स्टॉक्स में शायद, दो स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद वो रिकवरी भी दे दिया। ओके, चलिए अभी and knowledge sharing is for education purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. And please like, share and subscribe to my channel, and link to my telegram and the phone number where you can WhatsApp if you need any help for any stock levels or opening levels. So you can obviously do that. And thank you one and all.